Hello students, in my previous lecture I have discussed a 5-membered heterocyclic compound thiophene, furan and pyrrole. So now today I am discussing 6-membered heterocyclic compound, and that is pyridine. Pyridine is a 6-membered heterocyclic compound in which heteroatom is nitrogen, and the structure of pyridine is just like the structure of benzene. Benzene is also 6-membered compound and aromatic compound, so there is an alternate double single bond sequence in benzene as well as in the pyridine. And in pyridine, one carbon of this carbon of benzene is replaced by nitrogen. The compound is known as pyridine, or it is also known as azabenzene. Okay, here I have shown a lone pair of electron present in nitrogen. So azabenzene or benzene. The IUPAC name of this pyridine is because this in this compound heteroatom is nitrogen and prefix for nitrogen is aza, AZA, plus this is 6-membered unsaturated cyclic compound, so stem is INE. Okay, and when we write the IUPAC name of this compound, we omit this A, we remove this A. So the spelling of azine is AZINE. Okay, so IUPAC name of this pyridine is azine. The pyridine is present in coal tar you know, at 0.01% as well as in the bone oil. And this is the sigma framework of pyridine, in which there are 5 CH sigma bonds, CH, 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 so 5 CH sigma bond, and all carbon in pyridine are sp2 hybridized. All carbon 1, 2, 3, 4, 5, all 5 carbons are sp2 hybridized, and nitrogen is also sp2 hybridized. And this is a cyclic compound, all are sp2 hybridized. It means compound is planar and it has 6 pi electrons. So this compound is aromatic in nature. Okay, 6 pi electron and sp2 hybridized carbon and sp2 hybridized nitrogen. And here you can say that it has 5 CH sigma bond, and these 5 CH sigma bonds are formed by the overlapping of this sp2 hybridized orbital of carbon and s orbital of hydrogen. So CH bonds are formed by the overlapping of sp2 hybridized of carbon and s orbital of hydrogen. It has 4 CC sigma bond here, 1, 2, 3 and 4. So 4 CC sigma bonds are here, and these bonds are formed by the overlapping of sp2 hybrid orbital of this carbon and sp2 hybrid orbital of this carbon. So 4 are formed by this, and there are 2 CN sigma bonds, CN sigma and CN sigma, and these bonds are formed by the sp2 hybridized of this carbon and sp2 hybridized orbital of nitrogen. Okay, so 2 sigma bonds are formed by this one. And the electronic configuration of nitrogen is 1s2, 2s2, 2p3, nitrogen 7, 1s2, 2s2, 2p3, and these are the orbital diagrams. So in s orbital there are 2 electrons, in p orbital there are 3 electrons. In the case of nitrogen there is a sp2 hybridization. It means there is a mixing of one s orbital and 2 p orbital. Okay, so here I have shown that there is a mixing of 3 orbitals, 1s and 2 p orbital, and by the mixing of 3 orbitals there is a generation of 3 hybrid orbitals, and the structure is trigonal planar. Here you can see that nitrogen is trigonal planar and it has 3 hybrid orbital, 1, 2 and 3. 2 has 1 electron and 1 hybrid orbital has 2 electrons, so 1, 1 and 2 electrons. These 2 electrons are involving in sigma bond formation with these carbon atoms. Okay, because these are unpaired electron, so these unpaired electrons orbitals involved in the formation of this sigma bond with this carbon from here, and in another side another orbital it can make a sigma bond with another carbon atom, and it has a unused sp2 hybrid orbital with a lone pair of electron. Okay, this hybrid orbital is not involved in sigma bond formation. Okay, so this is unused sp2 hybrid orbital which has a lone pair of electron. In here you can also see that nitrogen has a single electron in p orbital. Okay, this is unhybridized p orbital. In hybridization only 2 p orbitals are involved, 1 p orbital remain as such. So this p orbital has a single electron, so this is p orbital with a unpaired electron, means single electron. Okay, now this is pi framework of
this pyridine, as we know that all carbons are sp2 hybridized, so all carbons should have at least one p orbital with a single electron. So these are all carbons, 5 carbons, and all has one p orbital, and all p orbitals has a unpaired electron. Okay, and here you can also see that nitrogen also has one p orbital with one electron. Okay, so these orbitals are in the same geometry and they overlap and form the pi framework. So pi framework is formed by the overlapping of these p orbital. Okay, and in pi framework, how many electrons are involving? 1 2 3 4 5 and 6. That's why pyridine is 6 pi electron system. Pyridine is 6 pi electron system, and this is sp2 hybrid orbital, which is not used in bond formation. And this hybrid orbital with here like this, it has a lone pair of electron, and this hybrid orbital is perpendicular to this p orbital. Like p orbital is this one, then sp2 hybrid orbital is like this one. So this is perpendicular to p orbital. So these hybrid orbitals are, these two electrons are not involving in resonance. Okay. Now isolation of pyridine. How we can isolate pyridine from coal tar? And in coal tar there is a light oil fraction. Its boiling point up to 170. When we distill coal tar, we get different fraction: heavy oil, light oil, petrol, diesel. So in the fraction of coal tar, there is a fraction which is light oil fraction. When this light oil fraction is treated with sulfuric acid is an acid, so it can react with base. Okay, and pyridine is also a base. So H2SO4 react with base as well as other bases present in this light oil fraction. Okay, so we just take some oil like this one, then क्या ऐड करना है हमने? We should add sulfuric acid. So there are two layers because oil is not soluble in sulfuric acid. So there should be two layers. One is water layer and another one is oil layer. Okay, and when we shake these two solvent properly, then from the solvent light oil fraction, this oil fraction, all the bases comes to the acid layer, all the bases as well as pyridine. ठीक है, कहाँ पर पहुँच जाएंगे? आपके एसिड लेयर पे. तो एसिड लेयर पे क्या आ गया आपका? pyridine as well as all bases. ठीक है, कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड से they will react with acid and convert it into salt. जानते हो ना, एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है. तो दे कम इन द एसिड लेयर. ठीक है, फाइनली द एसिड लेयर इज ट्रीटेड विथ NaOH. इट्स अगेन अ बेस. सो ये क्या करेगा? फिर से अगेन से सॉल्ट जब बेस से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा आपका? फिर से एसिड को, वो बेस को रिलीज कर देगा. ये किससे करेगा? एसिड वाले से करेगा, तो बेस को रिलीज कर देगा. सो देयर इज ए डार्क ब्राउन लिक्विड, एंड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन we got pyridine. Okay, so this is a method how we can isolate pyridine from coal tar. Next, preparation of pyridine. How we can synthesize pyridine in laboratory? First one is from acrolein. Acrolein is acrolein or acraldehyde. Its another name is acraldehyde. So this is vinyl or aldehyde. ठीक है, CS2 double bond CHO. This is acrolein or acraldehyde. When this molecule react with ammonia or heated with ammonia, there is a formation of this 3-methyl pyridine, and this is also known as picoline. Pyridine 3-methyl, or this is known as beta picoline, alpha and beta. And when CS3 group is attached with pyridine, then compound is known as picoline. Okay, so picoline. So when acrolein treated with ammonia, it converted into picoline, and this CS3 group is converted into COH by using KMNO4 or K2Cr2O7. Anything we can use. This CS3 group is converted into COH, and by heating with calcium oxide, carbon dioxide removed from this compound, and compound converted into pyridine. So this is a method from which we can synthesize this pyridine from acrolein or acraldehyde. So this is acrolein, acraldehyde. We heated this compound with ammonia, and by the heating of these two compounds, picoline or beta picoline is formed,
and by the treatment of by oxidation of this compound with KMNO4 or K2OCr27, this CH3 group is converted into COOH group, and finally heating this compound with calcium oxide, carbon dioxide removed from this compound, and this compound converted into pyridine. Okay, second one is from acetylene. Acetylene CS triple bond CH, first member of alkyne acetylene. When this compound react with ammonia in the presence of this compound methyl orthoformate in the presence of alumina, then pyridine बन जाता है. ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको फिलहाल इसके लिए, इसमें कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है, तो उसके सिर्फ रिएक्शन याद करनी है. समटाइम वो पूछते हैं कि 2 रिएक्शंस बताइए या हाउ प्रिपरेशन मेथड्स आप डिस्कस कीजिए. सो देयर इज़ नो नीड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट इन द प्रीवियस लेक्चर आपने पढ़ा है कि पायरॉल से हाउ वी कैन convert this pyrrole into pyridine. When pyrrole react with diiodomethane in the presence of base, sodium methoxide is used as a base, and there is a 5-member ring converted into 6-member ring. There is a ring expansion. ठीक है, इसका मैकेनिज्म चाहो तो उसमें आपको लिखा है. नाउ प्रॉपर्टीज, pyridine बेसिक है बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो भी डोनर्स होते हैं दे एक्ट एज बेस. तो pyridine इज बेसिक इन नेचर. यदि स्मेल देखेंगे तो बहुत ही अनप्लीसेंट ऑर्डर है इसका. कलरलेस लिक्विड है. बॉइलिंग पॉइंट 115.5 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है. वाटर में भी सॉल्युबल है एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दिस इज सॉल्युबल इन बोथ वाटर एज वेल एज इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो हम कह रहे हैं कि pyridine इज बेसिक इन नेचर. तो फर्स्ट रिएक्शन, दीज आर रिएक्शंस ऑफ pyridine. फर्स्ट वन इज बेसिक कैरेक्टर. अब हम जानते हैं इफ pyridine इज बेसिक इट विल रिएक्ट विथ pyridine react with HCl acid and it converted into salt, pyridinium chloride. So this is base acid, so there is a acid base reaction and it forms a pyridinium chloride. Okay, this H positive attached with this nitrogen atom and ये Cl negative, ये positive हो जाएगा and ये Cl negative हो जाएगा. समझ में आता है कैसे हो रहा. ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्योंकि H पॉजिटिव के पास क्या नहीं होता है. ठीक है, अब इसको कभी अच्छे से और 10 बार बता चुकी मैं से. तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बिकॉज H पॉजिटिव इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, देयर इज 0 इलेक्ट्रॉन इन H पॉजिटिव एंड हियर यू कैन सी दैट नाइट्रोजन देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो हाउ कैन इज पॉसिबल इफ बिकॉज बॉन्ड इज फॉर्म दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैन ओनली फॉर्म व्हेन both atoms should have at least 1 electron and here hydrogen has 0 electron, so nitrogen gives 1 electron to this one and there is a bond formation. So this is pyridinium chloride. Okay, now basic character क्यों है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर है. ओके, हम लुइस की थ्योरी यही कहती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दे आर एसिड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, pyridine इज मोर बेसिक देन पायरॉल. ठीक है, तो पायरॉल क्या है आपका, पायरॉल इन द केस ऑफ पायरॉल दिस इज पायरॉल, इट ऑल्सो हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम एंड इन द केस ऑफ pyridine इट ऑल्सो हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन एटम. ठीक, लेकिन यदि आपने पायरॉल का पाइप फ्रेमवर्क देखा होगा तो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिजोनेंस, ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व है. समझ में आ रहा कौन सा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 electron from here, 2, 3, 4 and 5, 6. Pyrrole is also a 6 pi electron system and these 2 electrons are involved in resonance. ठीक है, तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड इन द केस ऑफ दिस pyridine these 2 electrons are not involving in resonance. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो ये वाला होता है वो किस में रहता है आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है एंड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू p ऑर्बिटल. सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस पाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिजोनेंस. ठीक, तो ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. तो यदि H कहीं से किसी को चाहिए H पॉजिटिव आएगा तो कहाँ पर अटैक इजीली होगा, क्योंकि ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो एवेबिलिटी ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस इन द केस ऑफ pyridine, ये पायरॉल. लेकिन क्या होगा pyridine के केस में क्या है, क्योंकि ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो कभी भी आएगा तो इसको ईजिली अवेलेबल है दिस लोन पेयर. ठीक, लेकिन ये नाइट्रोजन के पास आएगा तो भैया ये लोन पेयर क्या हो रहा है, कभी यहाँ घूम रहा है कभी यहाँ, नाइट्रोजन के पास नहीं भी मिल रहा है. समझ में आ रहा. सो एवेबिलिटी ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम is lesser in the case of pyrrole and it easily available in the case of pyridine. That's why pyridine is more basic than pyrrole. Next point, pyridine is less basic than aliphatic amines. Okay,
तो एलिफेटिक एमीन, अच्छा हमें ऐसे दिखते हैं, अमोनिया नहीं दिखाते हैं, CH3 दिखाते हैं. सो दिस इज CH3 मीन्स ट्राईमेथिल एमीन एंड दिस इज पिरिडीन. ओके, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दिस नाइट्रोजन इट ऑल्सो हैज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. एंड हेयर भी जो ये लोन पेयर है ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस इसमें है ही नहीं. ठीक है, तो दोनों कंडीशन लगभग सिमिलर लग रही है. लेकिन फिर भी क्यों ये लेस बेसिक है, क्योंकि यहाँ पर को देखो क्या डिफरेंस है. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp2, ठीक, एंड हियर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन इज sp3. सो दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट एग्जिस्ट या इट प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड हेयर दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये डिफरेंस है, समझ में आ रहा. जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक, और हम जानते हैं कि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें s करेक्टर कितना होता है आपका 33.3% s करेक्टर होता है, और जो sp3 है उसमें कितना होता है आपका 25 होता है ना. कितने हैं टोटल, एक s और 3 p, तो टोटल कितने हैं 4. एक s और 3 p तो टोटल 4. 4 में s कितना है 1, मतलब 4 में 1 तो 100 में कितना 25%. ठीक है, 25%. हियर टोटल कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं 1 2 3. टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं 3, और 3 में s कितना है 1, तो 3 में 1 तो 100 में कितना, तो निकाल लोगे 33.3% s करेक्टर. ठीक है, और जिसमें क्या होता है जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है वो न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा क्लोज होता है. न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है प्लस, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली बांध के रखेगा. ठीक है, तो एस करेक्टर किस में ज़्यादा रख रहा है. इन द केस ऑफ पिरिडीन देयर इज मोर एस करेक्टर. मोर एस करेक्टर होने की वजह से क्या हो रहा है, वो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है आपने टाइटली बांध के रखेगा, क्योंकि एस करेक्टर जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है. न्यूक्लियस के क्लोज होने का मतलब है न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है प्लस. ठीक, तो जो ये वाला लोन पेयर है वो न्यूक्लियस के क्लोज है, तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. जानते हो ना, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा. और इस केस में क्या है आपका, क्योंकि इसमें एस करेक्टर कम है तो ये दूर होगा. समझ में आ रहा, दूर होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा. अट्रैक्शन कम होगा तो ये इजीली अवेलेबल है. ठीक है, और इसमें क्या है आपका टाइटली इसने बांध के रखा है इस वाले नाइट्रोजन ने. दैट्स वाई पिरिडीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन. नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं इसकी जनरली कौन सी पोजीशन पर होती हैं, 3 पोजीशन पर. अब क्यों होती है 3 पोजीशन पर, ये डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं इसका ये दिखाते हैं कि 2 पोजीशन पर अटैक होने पर क्या होगा, 3 पोजीशन पर अटैक होने पर क्या होगा, 4 पोजीशन पर अटैक होने पर क्या होगा, जैसे कि हमने किसके केस में किया था, पायरॉल के केस में. ठीक है, फर्स्ट केस मान रहे हैं अटैक एट 2 पोजीशन. 2 पोजीशन मतलब दिस वन. ठीक है, 1 2. अब यदि यहाँ पर अटैक होना है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है. तो ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हो जाएगा. समझ में आ रहा है, ये ऐसे क्यों दिखाया गया है, क्योंकि इस समय हमारा मोटो है अटैक एट पोजीशन नंबर 2 पे शो करना. ठीक है, तो ये ऐसे क्लीव होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये डबल का सिंगल हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव दिख रहा, ये पॉजिटिव हो गया. इस नेगेटिव से ये ई जुड़ गया तो ये ई जुड़ गया. ठीक, फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ 1 2 3. ठीक, बन गया ऐसे 1 2 3. +1 से कहाँ चला जाता है बताया था आपका 3 में, +1 से 3 में. और जो बॉन्ड 2 3 में दिख रहा है अगले स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में, तो दिख रहा है 1 और 2 के बीच में बॉन्ड ये प्लस. वैसे इसका आगे कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनता, लेकिन ये क्या है अनस्टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस कर रखा. चलो देख लेते हैं 1 2 3. तो क्या होना चाहिए था, ये प्लस यहाँ पर आ जाता और ये बॉन्ड पीछे चला जाता. लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा है आपका अनस्टेबल है. क्यों, क्योंकि चलो क्योंकि नाइट्रोजन में कैसा चार्ज है पॉजिटिव, एंड नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें स्टेबिलिटी कब मिलती है, जब नेगेटिव ही चार्ज आएगा. इसमें कैसा चार्ज आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, और फाइनली H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, यहीं से रिमूव कर दो H पॉजिटिव ऐसे. ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया एट पोजीशन नंबर 2. अब ऐसे किस पे अटैक दिखाओगे, पोजीशन नंबर 3 पर. तो पोजीशन नंबर 3 पर होना है तो ये बॉन्ड ऊपर क्लीव होना है. ये कैसा आ जाएगा, यहाँ पर को E पॉजिटिव, ये कैसा, ये E पॉजिटिव यहाँ अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पर जो कार्बन है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 1 2 3. ठीक है, तो कुछ नहीं है 1 2 3
पॉजिटिव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, दिख रहा है 1 और 2 के बीच में बॉन्ड आ गया। फिर अगेन 1 2 3 यहाँ से यहाँ चला जाएगा और बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया। एंड फाइनली H पॉजिटिव रिमूव फ्रॉम दिस कंपाउंड एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो फाइनली आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड एट पोजीशन नंबर 3। लाइकवाइज आप किस में भी दिखा सकते हो, पोजीशन नंबर 4 पे भी दिखा सकते हो। इसको ऐसे अटैच कर दो, अटैक करेंगे तब यहाँ पर E पॉजिटिव जुड़ सकता है, तो इसको आपने ऐसे तोड़ा, यहाँ पर E पॉजिटिव अटैच हो गया। फिर अगेन 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो गया आपका, यहाँ पॉजिटिव आ गया। एंड फाइनली ये फिर अगेन दिख रहा है ये कैसा स्टेबल आपका, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। नाइट्रोजन में कैसा चार्ज होने पर स्टेबिलिटी मिलती है, नेगेटिव। और यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो आउट ऑफ 3 तो ये हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर को भी। सो जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिजोनेंस में वो ये 2 हैं। या हम सीधा साधा ये भी कह सकते हैं कि जब अटैक पोजीशन नंबर 4 पे हो रहा है तो ये जो आपका रिजोनेंस स्ट्रक्चर आ रहा है वो इस अनस्टेबिलिटी दे रहा है। इसमें आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा कि नाइट्रोजन में क्या आ रहा हो आपका, पॉजिटिव। देखो यहाँ पर कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा आपको नहीं मिल रहा जहाँ पर को कि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये वाला जो है ये स्टेबल है, और जो हमने अटैक किया था कौन सी पोजीशन में, 2, उसमें भी एक अनस्टेबल आया था और इसमें भी क्या आ रहा है, एक अनस्टेबल। तो ये दोनों अनस्टेबिलिटी दे रहे हैं। इट मीन्स देयर इज नो अटैक एट पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4। नाउ दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करते हैं आपका, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा ग्रुप होगा नाइट्रेशन में, NO2। तो NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड एट पोजीशन नंबर 3। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनेशन SO3H। एंड फाइनली Br2 एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोमीन एट पोजीशन नंबर 3 बिकॉज 3 पोजीशन इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है पोजीशन नंबर 2 पर होती है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फिर अगेन हम क्या करेंगे, अटैक एट पोजीशन नंबर 3 दिखाएंगे, पोजीशन नंबर 2 दिखाएंगे, पोजीशन नंबर 4 नहीं भी दिखाएंगे तो 2 और 4 का सेम आता है। ठीक है, अच्छा दिखा रखा तो चलो दिखाई देती हूँ। तो अटैक एट पोजीशन नंबर 3 पे क्या होगा आपका, 3 पर कैसे अटैक होगा, देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, जब यहाँ पर कैसा चार्ज आना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव है तो इट मीन्स यहाँ पर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो बॉन्ड डिसोशिएट इन सच ए मैनर दैट दिस कार्बन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। दिस पॉजिटिव नेगेटिव, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल। तो देयर इज अ, दिख रहा है बॉन्ड हियर, कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स नेगेटिवली चार्ज। फिर अगेन रिजोनेट कर दो, 1 2 3 यहाँ पर आ गया, फिर 1 2 3 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट फाइनली क्या कर दो, H नेगेटिव निकाल दो यहाँ से, ये पहले वाले से निकाल दो, H नेगेटिव निकाल, यहाँ से गलत निकाल दी, यहाँ से निकालो H नेगेटिव। ठीक, तो H नेगेटिव यहाँ से निकलेगा तो देयर इज अ, यहाँ पर को बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा दिस कार्बन और दिस कार्बन के बीच में, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ अटैक एट पोजीशन नंबर 2। अब पोजीशन नंबर 2 पर कब अटैक होगा, जब क्या होगा आपका बॉन्ड ऐसे क्लीव होना चाहिए कि पोजीशन नंबर 2 पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये ऐसे क्लीव होगा तो ये नेगेटिव आ गया और ये कैसा आ जाएगा आपका, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, फिर 1 2 3 यहाँ पर आ गया, फिर 1 2 3 यहाँ पर आ गया। जब मूव करता है तो बॉन्ड भी पीछे चला जाता है। ठीक है, एंड फाइनली क्या निकाल दो, H नेगेटिव। फिर यहीं से भी निकाल दिया, यहाँ से निकालो H नेगेटिव। ठीक है, तो H नेगेटिव निकला तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये गलत हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी गलत हो रहा है, इसको भी सही कर लो। ठीक, तो क्या हो गया, फिर फाइनली H नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो गया तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही 4 पोजीशन पे कैसे होगा आपका, 4 पे दिखाओ तो ऐसे ही दिखा लेना, इसमें कुछ नहीं है। ये ऐसे क्लीव हुआ, ये कैसा हुआ आपका, पॉजिटिव, बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव। फिर क्या करो आपका 1 2 3 यहाँ आ गया, 1 2 3 यहाँ आ गया। फाइनली यहाँ सही दिखा रखा है, न्यूक्लियोफाइल जहाँ पर अटैच होता है वहीं से H निकलता है। ठीक है, ये क्या हुआ, H नेगेटिव, ये क्या बन गया आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में क्या है, देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसमें भी 3 बन रहे हैं, इसमें भी 3 बन रहे हैं, इसमें भी 3 बन रहे हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, देखो इस वाले में जो बन रहा है उसमें क्या बन रहा है आपका, देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कि नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन कैसा होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसमें नेगेटिव चार्ज आना इट मीन्स उसको स्टेबिलिटी दे रहा है। तो व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक एट पोजीशन नंबर 4 तो उसको स्टेबल बना रहा है। व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक एट पोजीशन नंबर 2 तो कोई नेगेटिव वाला आ रहा होगा आपका, यही आ रहा आपका। ठीक,
तो ये भी क्या आपका स्टेबिलिटी दे रहा है। लेकिन जब 3 पोजीशन पर अटैक हो रहा है तो कोई ऐसा आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है जिसमें कि नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है, तो इट मीन्स ये लेस स्टेबल है। तो ये दोनों स्टेबल है, पहला पॉइंट, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, क्योंकि ये क्या होता है आपका नाइट्रोजन के क्लोज है, कौन सा 2 पोजीशन, इसलिए कहाँ पर अटैक होता है, 2 पोजीशन पर अटैक होता है। 4 पोजीशन फार हो जाने की वजह से, दूर हो जाने की वजह से वहाँ पर अटैक नहीं होता। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, जब अटैक कौन सी पोजीशन पर होगा, 2। लेकिन यदि 2 ब्लॉक है दोनों साइड से, यदि यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से 2 ब्लॉक होगा, उस केस में क्या होता है आपका अटैक 4 पोजीशन पर होता है, 3 पोजीशन पर नहीं होता है। लेकिन अभी देखेंगे कुछ अनयूजुअल। तो ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये पिरिडीन है NaNH2। तो क्या होगा, NH2 होता है नेगेटिव, तो वो 2 पोजीशन पर जुड़ जाएगा, C6H5Li। तो C6H5 होता है Li, C6H5 नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये 2 पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट एक रिएक्शन इसकी रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन करने पर अलग अलग रिएजेंट से अलग अलग, अच्छा इसमें तो सेम ही है, H2 और निकल के साथ करने पर क्या बनता है, पाइपरिडीन बनता है। सभी के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेचुरेट हो जाते हैं। ऐसे सोडियम और इथेनॉल के साथ रिएक्शन करने पर भी पाइपरिडीन बनता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका पिरिडीन।